friends, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting with the chapter 3 Private, Public and Global Enterprises. अभी तक जो भी हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किए वो सारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थी और अब इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट आर ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. Mind it, I am saying public sector and private sector. Usually the children get confused as public company and private company. Sector means various organizations working under public sector and various organizations working under private sector. So let's see, first of all in the introduction, role of private sector versus public sector since independence. ये बताता है कि इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के अंडर रख दिया था. मतलब कि 1948 और 1956 में सबसे ज्यादा डोमिनेंट रोल जो प्ले कर रहा था दैट वाज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू वेरी एरियाज. बट इनफैक्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहा था प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर डिड नॉट हैव मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट but still more priority was given to the public sector. Later in 1991 the LPG policy was introduced, liberalization, privatization and globalization. इस पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे into various areas except few areas like defense and all, private sector was now allowed to enter into various areas. Now in this chapter we will discuss various types of public sector enterprises. That is your departmental undertaking, statutory corporation and the government company. These are the three types of public sector enterprises which we are going to discuss here in this chapter. So let's see the first type of public sector enterprise, that is your departmental undertaking. Departmental undertaking is the oldest form of public sector enterprises. This type of enterprise is basically completely under the control of government. That means 100% dominance यहाँ पर गवर्नमेंट का है. Completely the ministers are controlling this. जो भी फाइनेंस आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है. That is everything is sanctioned from the treasury of the government. जो भी रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है. तो आपके रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज नीडेड, they all come under the departmental undertaking. So let's see the various features of departmental undertaking. Number one, it is completely under the control of government. Number two, जो भी revenue departmental undertaking को चाहिए वो सारा का सारा revenue government के budget में से sanction होता है. Number three, जो भी अर्निंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हो रही है जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट में, दैट रेवेन्यू इज कंप्लीटली डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. तो देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है पैसे को यूज करने की, पैसे को खर्च करने की. सो इट सेज दैट जो भी स्टाफ यहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं दे आर ऑल सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट जी सरकारी कर्मचारी जिनका जो रिक्रूटमेंट होगा, जो कॉम्पनसेशन वेजेस डिसाइड होगा वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा. सो दे आर कंप्लीटली अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस टू द पार्लियामेंट व्हिच इन टर्न एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी टू द जनरल पब्लिक. जो भी अफेयर्स होंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएंगे और वो सारे के सारे in turn they will be accountable to the general public. That means इनकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट की आइडेंटिटी से सेपरेट नहीं मानी जाएगी. अगर कोई मुकदमा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट दायर कर रहा है तो means that person is filing a sue against the government. As you can see the 7th point, they can be sued in the same manner
as one can file a suit against the government. So that means they have no separate legal entity. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही हिस्सा मानी जाती है. अब इन अंडरटेकिंग के हम मेरिट्स पर आते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स. नंबर 1, इजी फॉर्मेशन. दैट मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अपना काम चालू करने के लिए किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पर जो कंट्रोल है टोटली इट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. आप देखिए जो भी सैंक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट के बजट से हो रहा है. जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है. तो एक एक पैसे का हिसाब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को देना है. They have to maintain proper accounts and the accounts are properly audited also, so that they are answerable for each and every penny to the government. किसी भी तरीके का घपला यहाँ पर नहीं किया जा सकता. Next we have accountability. जो भी अफेयर्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, देखिए उनको डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में. डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट. सरकार को चूज किसने किया है? जनरल पब्लिक ने. जनरल पब्लिक ने जब सरकार को चूज किया है तो उनके हर कार्य के लिए उन्हें जवाबदारी देनी पड़ेगी. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी पुट अप इन द पार्लियामेंट एंड द मिनिस्टर्स देयर विल बी accountable to speak, that is answerable to speak for any question put up in the parliament regarding these departmental undertaking. Revenue, जो भी रेवेन्यू आ रहा है मैंने आपको बताया इनको बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है उस रेवेन्यू को यूज करने की. जैसे देखिए रेलवे डिपार्टमेंट जो भी रेवेन्यू जनरल पब्लिक से कलेक्ट किया जा रहा है 100% रेवेन्यू गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाएगा. उन्हें बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है कि उस पैसे को यूज करके वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके. एंड सीक्रेसी, डेफिनेटली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखती है. इसी के कारण डिफेंस को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर लिया गया है. नाउ वी कैन सी व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नंबर 1 पॉइंट इज योर इनफ्लेक्सिबिलिटी. ये पॉइंट बोलता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग 100% पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर है, 100% मिनिस्टर्स के अंदर कंट्रोल में है, जिसके कारण उन्हें अपने काम को करने के लिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. कुछ भी लचीलापन नहीं है. हर काम में मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस रहता है. नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन. एज आई टोल्ड यू जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं दे आर ऑल सिविल सर्वेंट्स. दे हैव टू गो एज पर द नॉर्म्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर आप देखिए द प्रमोशन हियर इज नॉट बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियोरिटी. जितना ज्यादा पुराना इंसान यहाँ पे काम कर रहा है उस बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिया जाता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे कैसा मोटिवेशन होगा? देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड. दैट मीन्स जो इंसान ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके काम को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. एप्रिसिएशन के बेसिस पर उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है. यहाँ पर प्रमोशन बेस्ड किस पर है? सीनियोरिटी के बेसिस पर. तो सेज देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन. प्लस इन अंडरटेकिंग को जो भी पैसा मिल रहा है वो डायरेक्टली इन्हें गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करना पड़ रहा है, जिसके कारण the motivation between the workers working here is lacking. Next is lack of financial autonomy. पैसे को भी यूज करने की यहाँ पर बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है. पैसा कितना चाहिए गवर्नमेंट के बजट से सैंक्शन होगा. रेवेन्यू जितना अर्न हो रहा है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसे को वो यूज करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने का सोच भी नहीं सकते. So let's talk about the railway department. If they think that the services of railway should be improved, टॉयलेट्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वो सोच ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास लिबर्टी नहीं है उस पैसे को यूज करके जिससे वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट इज योर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट.
I said management of departmental undertaking, it basically lies in the hands of government officials. और ये जो ऑफिशियल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ओवरबर्डन है किस काम से? पेपर वर्क से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वाले ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करना है। उनको मैक्सिमम टाइम सिर्फ उन क्वेरीज को जो पार्लियामेंट के थ्रू आ रही है उनको सॉल्व करने में लगाना है। और कहीं कभी भी ये ऑफिशियल्स, सिंस दे आर सिविल सर्वेंट्स, दे आर ट्रांसफर्ड एनी टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसफर जब होना ही है कभी भी अचानक किसी भी वक्त, तो वो लोग किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज वाई दे वर्क इन अ इनएफिशिएंट मैनर। Next is rat-tapism and bureaucracy. This point says that there is delay in taking decisions in departmental undertaking, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़। एकदम कोई भी हम बोले कि डिसीजंस, क्विक डिसीजंस ले सकें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इमीडिएट एक्शन जो कि किसी भी एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए चाहिए, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप गए वोडाफोन के ऑफिस में, आप गए बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल का ऑफिस सरकारी ऑफिस, वहाँ पर आप देखेंगे दुनिया भर के पन्ने आपसे भरवा दिए जाएंगे, ऊपर आपकी कंप्लेन को पहुँचाया जाएगा, 10 दिन बाद आपकी कंप्लेन की तरफ देखा जाएगा। और वहीं आप वोडाफोन के ऑफिस में गए, द मोमेंट यू रजिस्टर योर कंप्लेन विद द पीपल ऑफिशियल्स वर्किंग देयर, इमीडिएटली यू गेट अ फीडबैक ऑन द प्रॉब्लम यू आर सफरिंग। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दे आर वेरी मच डिलेड। इमीडिएट एक्शन विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेपर वर्क पर एम्फोसाइज किया जा रहा है। दुनिया भर के टॉप ऑफिशियल से प्रोसीजरली काम करने पर विश्वास किया जा रहा है, जिसके कारण जो क्विक डिसीजंस हम किसी भी एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। और आखिरी का पॉइंट आता है हमारा सूटेबिलिटी, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस तरीके के केसेस में सूटेबल है। नंबर 1, जब एटमोस्ट सीक्रेसी। आप देखेंगे आपने एक पॉइंट पढ़ा था दैट मेरिट्स में सीक्रेसी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज इन अ पोजीशन टू मेंटेन सीक्रेसी। तो डेफिनेटली डिफेंस किसके अंडर डाला जाएगा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नंबर 2, वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में आप देखिए क्या इंक्लूडेड है, हमारा रेडियो, टीवी, किसी भी तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आम जनता के सामने हम बिना सोचे समझे ब्रॉडकास्ट कर दें तो क्या हो सकता है? दंगे फसाद वाली सिचुएशन हो सकती है। तो इसी कारण से ब्रॉडकास्टिंग को, जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल एसेंशियल है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर रखा गया। नंबर 3, जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सरकारी पॉसिबल है, सरकारी पैसा दे सकती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट एंड ऑल, दे आर इंक्लूडेड अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एंड नंबर 4, where any undertaking is a source of revenue for the government, जैसे कि रेलवेज, जो भी पैसा आएगा पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ टिकट्स के ऊपर, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। तो इस तरीके की जो अंडरटेकिंग्स हैं, दे आर सूटेबल फॉर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। थैंक यू, that's all for today. If you have any queries, please comment.